Hello student, I'm Alok from eLearning, and today I'm just going to tell you the second chapter of your book Flamingo, that is The Lost Spring by Anis Jain. I hope you will enjoy the chapter. And now the main points of the chapter. This story has been divided into two parts. The first part describes the writer's impression about the life of poor rag picker who have migrated from Bangladesh and now settle in Simapuri of Delhi. The second part describes the miserable life of the bangle makers in the town of फिरोजाबाद. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ड्रैग पिकर्स के बारे में है जो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं और सीमापुरी नई दिल्ली के इलाके में रह रहे हैं। और दूसरे पार्ट में फिरोजाबाद में रहने वाले एक मुकेश जो कि एक बैंगल मेकर कास्ट से बिलोंग करता है उसके बारे में है। Now the main points. The first part, that is the rag picker. The writer sees a boy named Sahib. Writer एक लड़के से मिलता है जिसका नाम साहिब है and every morning in her neighborhood the boy looks for some coins or the other thing in the garbage heaps. कूड़े के ढेर पर वो कॉइन्स को ढूंढता है, सिक्कों को ढूंढता है या और दूसरी चीजें जो उसे कूड़े में नजर आती हैं। ये कूड़ा द गार्बेज उसके लिए एक अजूबे के समान है बिकॉज उसे कुछ न कुछ रोज नया मिलता है, लेकिन उसके माता पिता के लिए ये जीवन जीने का एक जरिया है। One day the writer talks to the boy. एक दिन लेखक लड़के से बात करती है, लेखिका बात करती है and she comes to know और उसे ये पता चलता है that these people have migrated from Bangladesh. ये लोग बांग्लादेश से माइग्रेट होकर इंडिया आए हैं and their field and homes were swept away by storms. उनके जो घर हैं, उनके जो fields हैं, मैदान हैं, सब स्वेप्ट हो चुके हैं, सब बह गए हैं तूफान के जरिए and they had nothing to eat. उनके पास खाने को कुछ नहीं है। So they came to the big city and started living there. और इसीलिए वो इस बड़े शहर में आकर यहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। The writer told साहिब, राइटर साहिब को बताता है that he should go to school, कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। साहिब said that there was no school in their neighborhood, कि उनके पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। At this, the writer said half jokingly, "If I start a school, will you come?" कि अगर मैं स्कूल चालू करूंगी तो क्या तुम आओगे? साहिब said that he would, कि वो जरूर आएगा। But the writer had to feel small when a few days later, Sahib asked her, "Is your school ready?" कुछ समय बाद जब लेखिका से साहिब पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, तो वह अपने आप को छोटा महसूस करती है। In fact, the writer had never meant it, क्योंकि लेखिका तो कभी स्कूल खोलना ही नहीं चाहती थी। There were a number of rag pickers like साहिब, और साहिब के ही जैसे कई सारे rag pickers वहाँ रहते हैं। In a few months, the writer came to recognize each of them. कुछ ही महीनों में लेखिका उन सभी को पहचानने लगती है। And they were all barefoot. वो सारे के सारे ही नंगे पैर रहते हैं। With some people it is a tradition to go barefoot. कुछ कहते हैं कि ये तो ट्रेडिशन है कि वो barefoot रहते हैं, और कुछ कहते हैं कि उनकी माँ शेल्फ से नीचे ही नहीं उतारती जूतों को, लेकिन ये उनका एक जरिया था अपनी गरीबी को छुपाने का, जबकि वो जानते थे कि जूते उनकी पहुंच से दूर हैं। They use it an excuse to conceal their poverty. And the writer finds that all these barefoot rag pickers live in Simapuri. ये सारे के सारे जो rag pickers हैं ये सीमापुरी में रहते हैं, which is on the periphery of Delhi, जो दिल्ली के अविकसित इलाकों में बसा हुआ है। When she goes there, और जब वे वहाँ जाते हैं, she finds that these people came from Bangladesh in 1971. उसको ये जानकारी मिलती है कि ये 1971 में 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आकर बसे and started living here in search of food, खाने की तलाश में। There are about 10,000 of them. 10,000 के करीब ये लोग यहाँ बसे हुए हैं and they live in the structures of mud with roofs of tin and tarpaulin. जो टीन के और tarpaulin की बनी हुई मट्टी की दीवारों के घर हैं जिनमें ये रहते हैं। They live here without any facilities. उनके पास कोई facilities नहीं है। Without any facilities they live there. Of sewage and drainage or running water. Sahib tells the writer that sometimes he finds a rupee or even a 10 rupee note in the garbage. वो राइटर को ये भी बताता है कि उसे कभी 10 का सिक्का या इससे ज्यादा कभी पैसे उसे मिल जाते हैं इस गार्बेज के अंदर। थर्स्ट फॉर चिल्ड्रन, और इसीलिए इन बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो एक वंडर के समान है जो
काफी अजूबे उसमें से निकलते रहते हैं और इन्हें मिलते रहते हैं। एंड फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जीवन जीने का एक जरिया है। वन विंटर मॉर्निंग, और एक सर्दियों की सुबह, द राइटर सी साहेब वॉचिंग अ गेम ऑफ अ टेनिस। वो देखती है कि साहेब टेनिस का गेम को वॉच कर रहा है। साहेब सेज दैट ही लाइक्स दिस गेम, कि उसे ये खेल बहुत पसंद है। ही इज वेयरिंग टेनिस शूज डिस्कार्डेड बाय सम रिच बॉय, और वो टेनिस शूज पहना हुआ है जो कि एक रईस बच्चे के, एक रिच लड़के के डिस्कार्डेड शूज हैं, and give him to him, जो उसने इसे दे दिया है। But the game is watching is out of his reach, लेकिन जो खेल वो देख रहा है वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। Sahib starts working at tea stall, and now the Sahib has started working at the tea stall, यानी कि चाय की दुकान पर उसने काम करना शुरू कर दिया है। And he is paid 800 rupees and given all meals, 800 रुपए उसे दिए जाते हैं और उसको खाने को दिया जाता है। But now he is not free, अब वो आजाद नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। He is no longer his own master, अब वो अपना खुद का मालिक नहीं है। Because the castor which he is carrying, जो डोल वो अपने हाथ में लिया हुआ है दूध का, वो उसका अपना नहीं, वो चाय वाले का है। His bag which was so lighter, और जो easy था उसको कैरी करना, वो अब उसके पास नहीं है। This is the first part, the rag picker. I hope you enjoy it, and if you like this video, please click the like button and subscribe the channel.